Okay, students. Today again 15 minutes late. Zafra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And I'm 1096. Zuhair Ansari. Salah Shakil. Zafir Khan. Okay. Today our topic is parabola. Today we are doing parabola. Okay. Again, Mohammed Zubair. Hamza Shakil. And Shamir Ahmed. Sayyid Ahmed Khan. Mohammed Hassan. 40, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 40. One second, yes. Only only Shamir. 'Okay. Today our topic is parabola. The shape of the parabola is just like that. That's x-axis, y-axis, horizon. This is parabola.
So this is the parabola. So the equation of the parabola is y is equal to y square is equal to plus minus 4 y minus 0 whole square is equal to 4p into x 5 minus k x minus h. This is the equation of the parabola. This might be plus minus 4p into x minus h, where h and k are the coordinates of the vertex. These are the coordinates of the vertex. Okay, Abdullah Javed. Abdullah Javed. And Mary. Okay. So where h and k are the coordinates of the vertex, this is called the vertex. This is called the vertex V. There is only one vertex. In the parabola, there is only one vertex. And h and k are the coordinates, the vertices. In this case, the vertex is at the origin. Therefore, the coordinates of h and k are 0, 0. So this is y square is equal to 4p x plus minus, this is plus 4px. Plus is for this side. When it is on the x-axis, so there will be x and y square, y minus k whole square. So there is only one square. It may be x square, it may be y square, not the both squares. In the previous three shapes, circle, hyperbola, ellipse, we learned that there are two squares. X square is there, y square is there, both are there. But in parabola, only one square is there. Either it is x square or it is y square. It may be y square, y minus k whole square is equal to plus minus 4p x minus h, or x minus h whole square is equal to plus minus 4p y minus k. This may be the equation y minus k whole square or x minus h whole square. There is only square. Or there may be plus minus. There are also plus minus. This one is plus minus. Whole square is not plus minus. When the shape is this one, the equation will be y minus k whole square is equal to plus 4p x minus h plus 4p into x minus h. If it is on the opposite side, this way, if it is in this way, then the equation will be y minus k whole square is equal to minus 4p x minus h. If it is on the negative side of the x-axis, so it will be minus 4p x minus h. Plus minus plus is for on that side, for the plus side, and if it is on the negative side, it will be on the other side, on the negative x-axis. So it will be minus 4p x minus h. In the same way, this will be for this one.
this one, this will be equation x minus h whole square is equal to 4p y minus k plus, if it is on the downward, on the negative side, then the equation will be x minus h whole square is equal to minus 4p y minus k. Oh, can't see. The equation will be y minus h whole square is equal to minus 4p x minus h. The negative 4p. Here is the positive 4p. Here is the positive 4p when on that side. Here is the negative 4p when on the negative side of the x-axis. So these are the four different shapes where y, h and k. H and k are the coordinates of the vertices. H and k are the coordinates of the vertices in both the cases. And A, P is the distance from vertex to the focus. This is focus. This is focus. This is focus. There is only one shape, not the both shapes. There will be only one shape. There are four different cases. This is plus, this is minus. This is the other parabola. और इसी तरह इसमें भी ये अदर पैराबोला है और ये एक अलग 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 पैराबोला है. Only one shape, not the two shapes. For positive side, this will be one shape. For the negative, this will be, for this one, this will be the other shape. Where P is the distance from vertex to the focus. This is P. This is P. This is P. This is minus P. P is the distance from vertex to the focus. P is the distance from vertex to the focus. This is P. तो ये P का ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है. अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, वो कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स. इसी डेफिनेशन हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे पैराबोला को. पैराबोला क्विज भाई बच्चे क्विज पूछ रहे. क्विज जो है ना हम नेक्स्ट वीक लेंगे, आज नहीं ले रहे. क्विज हम नेक्स्ट वीक लेंगे. आज वैसे हम नेट की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए. क्विज हम नेक्स्ट वीक लेंगे. तो इसकी डेफिनेशन पैराबोला की. पैराबोला is a shape. Parabola is the locus of all the points. Parabola is a locus of all the points whose distance from a fixed line and from the fixed point always be equal. Parabola is a locus of all the points which are equidistant from a fixed point and a fixed line. The fixed point is called the focus and the fixed line is called the directrix. Fixed line क्या कहलाती है? डायरेक्ट्रिक्स कहलाते हैं. ये तो मैंने चार शेप बताई. अब मैं डायरेक्ट्रिक्स को बताता हूं डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी. ये अगर हम केस लेते हैं पॉजिटिव वाला और ये एच एंड के 0 है, एच एंड के 0 है, यानी वर्टेक्स जो है वो हमारा ओरिजिन पर है. एच एंड के आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस. तो एच एंड के ये हमारे 0 है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px पॉजिटिव. तो इस सूरत में हमारा ये बनेंगे पिक्चर.
vertex is at the origin. There is the focus F. There is a line opposite to the vertex. This line is called directrix. This line is called directrix. So focus is, this is any point P, X, Y. The point is moving in such a way that its distance from a fixed point, this one, and from a fixed line, this one, ये दोनों distances उसके equal होंगे. This distance यहाँ से यहाँ तक का distance और यहाँ से यहाँ तक का distance ये हमेशा equal रहेंगे. इस तरह move करेगा, यहाँ पर पहुंचेगा तो भी ये distance और ये distance equal होगा. फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा तो ये distance और ये distance हमेशा equal होगा. फिर यहाँ पर पहुंचेगा तो ये distance और ये distance हमेशा equal होगा. इसी तरह फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, ये distance और ये distance equal होगा. So this is the locus of all the points which are equidistant from a fixed line and from a fixed point. This fixed point is called focus and this fixed line is called directrix. This fixed line is called directrix. ये distance हमारे पास यहाँ से from vertex, this is the vertex, from vertex to the focus is called P. तो ये डिस्टेंस P है तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये माइनस P हो जाएगा. तो द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इज इक्वल टू माइनस P. ये माइनस P डिस्टेंस है x पर. दिस इज पैरेलल टू द y axis. The line is parallel to the y axis. Therefore, the equation of this line will be equal to x is equal to minus P. X is equal to minus P. This is the equation of the directrix. Hyperbola हमने equation of the asymptotes पढ़ी थी, इसमें हम equation of the directrix पढ़ रहे हैं. जितने फासले पर ये वर्टेक्स से फोकस होगा दिस डिस्टेंस P में और उतने ही फासले पर ये होगा हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स. और इसको लिख देंगे x is equal to minus P. अगर ये यूं होगा parabola, if on the opposite side, so directrix will be over there. So then x is equal to P हो जाएगा. X is equal to P हो जाएगा. और अगर यूं बनेगा on the y axis, the transverse axis along y axis, तो फिर ये क्या बनेगा, इक्वेशन है y is equal to minus P आ जाएगी. Y is equal to minus P, the equation of the directrix यूं बनेगी parallel to the x axis. जब ये यूं बनेगा तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरह पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बन जाएगी. सो दैट विल बिकम y इज इक्वल टू माइनस P. और अगर ये यूं बनेगा नीचे की तरफ तो डायरेक्ट्रिक्स इस तरह बन जाएगी y इज इक्वल टू P. y इज इक्वल टू P. ये याद रखिए ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा वो x माइनस h होगा. अगर x एक्सिस है तो x माइनस h होगा. ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा. ये फार्मूला है हमारे पास. तो ये हमारे पास याद रखिए. तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी अपोजिट टू द पैराबोला and it is at the same distance as the vertex at the focus. वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट साइड पर डायरेक्ट्रिक्स बनेगी. सो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. डायरेक्ट्रिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन which is equidistant from the focus and as the focus and the vertex.
This is equidistant. The directrix is a line which is equidistant from the vertex and from the vertex to the directrix and from the vertex to the focus. Both are the same distances. This is P. अगर हमें इक्वेशन दी जाए तो हम सबसे पहले P की वैल्यू निकाल, सबसे पहले हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ सेंटर 0 0 है, y क्या है, y माइनस 0 है, y माइनस के होल स्क्वायर होगा तो k को y कोऑर्डिनेट हो जाएगा और h जो है x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वर्टेक्स का। फिर हम p की वैल्यू निकालेंगे वर्टेक्स के बाद। p क्या होगा, ये x का जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी और उससे हम फोकस निकाल लेंगे। तो यहाँ ये p है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p, 0, y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक का, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस। और अगर ये u इस केस u बन रहा है तो फोकस हो जाएगा -p, 0। और अगर इस तरफ बन रहा है तो हो जाएगा 0, p, तो सॉरी इस तरफ बन रहा है 0, p, फोकस क्या हो जाएगा 0, p। और अगर इस तरफ बन रहा है तो 0, -p, p, 0, -p, 0, 0, p, 0, -p ऑन दिस केस। और ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा, जिस पर स्क्वायर नहीं होगा। एक पर स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर पर किसी पर स्क्वायर होगा, और एक पर स्क्वायर नहीं होगा। दोनों पर स्क्वायर नहीं होगा भाई इसमें, ये याद रखिए। इन द पैराबोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोथ नॉट बी प्रेजेंट ओवर देयर, ओनली वन प्रेजेंट। इट मे बी एक्स स्क्वायर, इट मे बी वाई स्क्वायर, कोई एक प्रेजेंट होगा इसमें, दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। दोनों प्रेजेंट इसमें नहीं होंगे, ओनली वन विल बी द प्रेजेंट ओवर देयर। तो हम जो जिस पर स्क्वायर नहीं होगा वही उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, जिस पर स्क्वायर नहीं होगा वही उसका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। तो सबसे पहले हम p की वैल्यू निकालेंगे। अगर इक्वेशन गिवन है सबसे पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे। इन दिस केस द सेंटर इज 0 0, द x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0। सेंटर कोऑर्डिनेट वर्टेक्स विल बी 0 0। वर्टेक्स हमें पता चल गया, हम p की वैल्यू निकालेंगे। x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, या y का जो भी कोएफिशिएंट, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसका जो भी कोएफिशिएंट आ रहा है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ p। तो p निकल आएगा तो वो हम उसके उसमें कोऑर्डिनेट में, इफ इट इज द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन द x एक्सिस, तो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट में ऐड कर देंगे। जो भी p की वैल्यू होगी वो फोकस होगा। एक फोकस होगा इसमें, दो फोकस नहीं होंगे। अभी तक जो भी हमने पढ़े हाइपरबोला और एलिप्स में दो फोकस होते हैं, दो वर्टिसेस होते हैं, इसमें एक वर्टेक्स होगा, एक फोकस होगा। सर्कल में तो खैर फोकस नहीं होता, सर्कल में सिर्फ दो चीजें होती है, सेंटर और रेडियस। इसमें बाकी में हमारे पास फोकस है, वर्टेक्स है, तो वो हम उस तरह करेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। Now we are doing exercise 19.8. We are doing the exercise 19.8. Question number 1. याद रखिए ट्रांसवर्स एक्सिस वो होगा जिसपे स्क्वायर नहीं होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा, जिस पर स्क्वायर नहीं होगा,
वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। पहले हम इक्वेशंस गिवन है, हम उससे फोकस और ट्रांसवर्स फोकस और वर्टेक्स वगैरह निकालते हैं, तो उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इन एक्सरसाइज 15 to 30 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the focus and the equation of the directrix in each exercise and sketch. Find the coordinates of the focus and the equation of the directrix in each exercise. तो हमने फोकस निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, उसकी इक्वेशन बनानी है और इसको स्केच करना है। हमने फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालने, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है और स्केच करना है। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 19.8 क्वेश्चन नंबर 15 x square is equal to 8y. So that is, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो that will become x minus 0 whole square is equal to 8 into y minus 0. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो इसमें वर्टेक्स हमारे पास 0,0 हो गया। वर्टेक्स 0,0, ट्रांसवर्स एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जिस पर स्क्वायर नहीं होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। ट्रांसवर्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये दो सिमेट्रिकल साइड में उसको कन्वर्ट करता है। ट्रांसवर्स एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, जिस पर स्क्वायर नहीं होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। दो चीजें पता चल गई। अब हमने p की वैल्यू निकालनी है। सो इसका जो होगा, जो ट्रांसवर्स एक्सिस वाली साइड पर जिसका कोएफिशिएंट होगा, हम उसका, दिस इज 4p, हम इसको ले लेंगे 8 को, तो p विल बिकम 8/4, 2 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 2। और p इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द फोकस। p is the distance from vertex to the focus. So p focus will become, ये y एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट में हम p की वैल्यू ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, y कोऑर्डिनेट में 0 में ये वैल्यू ऐड कर देंगे, फोकस। So it will become 0,2। ये तो फोकस हो गया। अब उसने इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स पूछा है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, so this is on the y axis, तो ट्रांसवर्स एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस है और हमें डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये y एक्सिस पर यूं बन रहा है तो डायरेक्ट्रिक्स यूं बनेगी, अपोजिट टू द वर्टेक्स। वर्टेक्स ये है, इसमें से माइनस कर देंगे p की वैल्यू y कोऑर्डिनेट में, तो y विल बी इक्वल टू, ये y कोऑर्डिनेट है, इसमें से p की वैल्यू माइनस कर देंगे, 0 - 2।
So therefore the equation of the directrix is equal to y is equal to -2. ये पॉजिटिव साइड पर है फोकस, तो वो अपोजिट साइड पर। तो इसको मैं ड्रॉ भी करता हूं, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। जहां हम ड्रॉ करते हैं, स्केचिंग हम कर रहे हैं इसकी। वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है, तो यहां से शुरू करेंगे। ये हमारे पास ओरिजिन है, यही वर्टेक्स है हमारे पास, यहां से। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई साइड एक्सिस पर तो हम यू बनाएंगे। ये हमारे पास पैराबोला बन गया। फोकस इसका क्या होगा, 0,2। यहां फोकस बन जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, 0,2। ये हमारे पास फोकस बन गया 0,2। और उतने ही फासले पर यहां पर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। y इज इक्वल टू -2। यहां से यहां तक का डिस्टेंस -2 है। ये इतना 2 है, तो इतना ही अपोजिट साइड पर लेना पड़ेगा। y इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू या y के वैल्यू 2 ही -2 ही रहेगी। ये -2, यहां से भी -2, यहां भी -2। x की वैल्यू चेंज होगी यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 नेगेटिव। इस लाइन पर जो है x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन y इतना ही रहेगा। कहीं भी चले जाए y -2 ही रहेगा। So this is the equation of the directrix. Y is equal to -2, focus 0,2 and sketch. अगर ये यहां पर -8y होता, तो ये अपोजिट साइड पे यहां पर बन जाता और डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चली जाती, और पैराबोला नीचे बन जाता अगर माइनस होता तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट विल बिकम x -0 होल स्क्वायर -12 इंटू y -0। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वर्टेक्सेस क्या हो गए, 0,0। वर्टेक्स, देयर इज ओनली वन वर्टेक्स। और इसको हम -12p को -12 को हम 4p ले लेंगे। 4p इज इक्वल टू -12। यहाँ माइनस हो या प्लस हो, हमने 4p ही लेना है। तो p विल बिकम -12/4 विल बी -3। p की वैल्यू -3 आ गई। अब हम फोकस ले लेते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस ये y है, ये x के पर स्क्वायर है, तो हम ये लेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस जिस पर स्क्वायर नहीं होगा। तो ट्रांसवर्स एक्सिस भी हम इसको कह देते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह देते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस भी। नेगेटिव, ये नेगेटिव आ रहा है भाई, तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ट्रांसफर एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ट्रांसवर्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस। पी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हम इसमें फोकस ले लेंगे। वर्टेक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। फोकस y एक्सिस पर है, तो y कोऑर्डिनेट में ये -p, p की वैल्यू ऐड कर देंगे।
एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट में ये ऐड कर देंगे -3, 0 -3, so it will become 0, -3. Equation of directrix. Equation of the directrix, तो ये on the opposite side होगा, y will become, y axis है इसका